محترم ڈاکٹر طریق قاضی صاحب، سدھیندر کلکرنی صاحب، محترم اشتاق انتولے صاحب، محیط میاں صاحب اور خواتین و حضرات، میرے ہاتھ میں یہ کاغذ دیکھ کے آپ گھبرائیں نہ، میں کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھنے والا ہوں یہاں پہ، چند باتیں الگ سے عرض کروں گا کہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ تصوف اور بھکتی کو الگ کرنے والے الگ کرتے ہیں تو اس طرح الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انسان کو انسان سے الگ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یونٹی کو یونیفارمٹی کی شکل دینے کی کوشش ہو جائے۔ ہم دونوں کو دونوں کے حقیقی پس منظر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا کسی شاعر کا شعر ہے، خوبصورت شعر ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ شعر بہت خوبصورت ہے، سننے والے پر بھی اثر ہوتا ہے اور سنانے والے پر بھی، لیکن یہ خاص کانٹیکسٹ میں ہی یہ شعر صحیح ہے، پورے طور پر اس شعر سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ محبت کا جذبہ ہر انسان کو ودیت ہوا ہے قدرت کی جانب سے، اور انسان ہی نہیں جانوروں کو بھی یہ جذبہ ملا ہے، اور جانور ہی نہیں پیڑ پودوں میں بھی یہ کیفیت کسی نہ کسی ڈگری میں موجود ہے۔ ریسنٹ سائنٹیفک ایکسپریمنٹ سے ظاہر ہو چکا ہے کہ 2 جگہ پلانٹیشن کیا گیا، ایک جگہ ہلکی میوزک بجائی گئی، ایک جگہ ہلکی میوزک نہیں بجائی گئی، تو جہاں ہلکی میوزک بجائی گئی تھی وہاں گروتھ زیادہ بہتر طریقے سے ہوا، زیادہ تیزی سے ہوا۔ تو محبت کی بولی کو پودے بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کو جنہوں نے گائے پالی ہو، جنہوں نے بکری پالی ہو، جنہوں نے طوطا پالا ہو، وہ جانتے ہیں کہ وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، ان کو جھڑک دو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور انسان تو محبت کا پتلا ہے، ایک خاص کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، کسی کی چیز کو ہتھیانے کی غرض سے، کسی پر اپنی برتری جتانے کے لیے، کسی سے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے، لیکن وہ بہت دیر نہیں رہتی ہے، اور وہ جب چیز ہٹتی ہے تو پھر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کرام نے اور ہمارے سنتوں نے یہ جو عارضی چیزیں آ کے انسان سے انسان کو بانٹنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور یہی بنیاد ہے تصوف کی بھی، اور یہی بنیاد ہے بھکتی کی۔ اس کا بھکتی کا اور تصوف کا مطالعہ ہم مذہب کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، ہم دوسرے حوالوں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کے حوالے سے اگر ہم کہتے ہیں تو ہندوستان کا مذہب الگ ہے، ہندوستان میں 10 مذاہب اور ہیں، چین میں الگ مذہب ہے، جاپان میں الگ مذہب ہے، وہاں نام بھی بدل جاتا ہے، شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، کیفیت بھی بدل جاتی ہے، لیکن انسان کی فطرت کے حوالے سے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو پوری دنیاویت ایک کنبہ نظر آتی ہے، ایک فیملی نظر آتی ہے۔ صوفیاء کرام کا یہی درس تھا کہ الخلق عیال اللہ، کہ وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ پستہ قد ہو، دراز قامت ہو، کیسا بھی ہو، وہ اگر وہ انسان ہے تو ایک فیملی کا حصہ ہے، اس کو الگ ایک دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو مذہب نے وشو کٹمب کا تصور کیا، وشو کٹمب کا تصور، سارے انسانیت، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص کا دوسرے شخص سے 2 قسم کا ناطہ ہے۔ ایک ناطہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی چاہے اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی علاقے سے تعلق ہو، کسی رنگ اور نسل اور ریس سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک پروردگار اور ایک مالک کا ماننے والا ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ یہ کوئی نہیں مانتا کہ ہم کسی بندر کی اولاد ہیں یا بایولوجیکل چینج کی صورت میں ہم آئے ہیں، یہ جتنے بھی صوفیاء ہیں جو بھی سیکس سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ایک باپ کی اولاد، اور یہی اسلام بھی کہتا ہے، اور محبت کی ہی کا درس سنتوں نے بھی دیا ہے، محبت ہی کا درس بھکتوں نے بھی دیا ہے۔ اس کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब किसी के पास कोई जाता है तो कुछ लेके जाता है, लेके आता है। हमारे घर की तहजीब रही। कोई हमारे घर में आए तो हम शक्कर से या गुड़ से या कोई फल से खाने के लिए देंगे, पानी पिलाते हैं, फिर रुखसत करते हैं। कोई किसी के पास जाए तो कुछ लेके जाता है तो वहाँ दे के आए। सूफी और संतों के पास कोई जानते हैं वो तलब नहीं करते, लेकिन जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं तोहफतन कि वहाँ दे के आए। तो कोई साहब आए, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था तो एक कैंची लेकर आए। घर में उस वक्त कैंची थी, कैंची दे दी। तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन आबदीदा हुए, कह रहे तुम मेरे लिए कैंची लेके आए हो? मेरे लिए सुई धागा लेके आना चाहिए था। मैं समाज को जोड़ने के लिए आया हूँ, समाज को तोड़ने के लिए नहीं आया। ये उनका पैगाम। हम जिस खानकाह से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे उर्स के 250-300 साल से वहाँ उर्स होता है, और जब उर्स होता है तो वहाँ मांस मछली गोश्त नहीं पकता उन दिनों, इसलिए कि हिंदू भी बड़ी कसीर तादाद में आते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं, इसलिए उनके जज्बात का भी ख्याल रखा जाता है। तो सूफियों और संतों ने दोनों ने मिलकर उस मोहब्बत की आबियारी करने की कोशिश की है जो हमारे और दिलों के दरमियान राबिते का काम करती है। यही असल तसव्वुफ है। और मोहब्बत की तासीर ये है कि जब मोहब्बत की फरावानी होती है, जब मोहब्बत की हुक्मरानी होती है, जब मोहब्बत का गलबा होता है तो गैरियत मिट जाती है। वो किसी को गैर नहीं समझता, किसी जगह को काबिल नफरत नहीं समझता। मिसाल मैं दे रहा हूँ, जो बहुत बड़े संत हैं हमारे, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े संत भी हैं। कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, कोई काहू की बेटी सो बेटा न बियाह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाको रचे सो कहे कुछ ओहू, मांग के खैबो मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देवे को दो। क्या आपका जी चाहे हमें गाली दे दो, आपका जी में आए मुझे बुरा कहो, आपका जी में आए मुझे इस बिरादरी का कहो, आपका जी में आए उस बिरादरी को कहो, मैं किसी की फिक्र नहीं करता। मैं मालिक का मानने वाला हूँ, मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो लूंगा, लेकिन लगी लिपटी नहीं होगा, सच्ची बात कहूँगा। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी रामायण के रचयिता है। मस्जिद को, अच्छा मस्जिद के बारे में हमारे बहुत से संतों ने बहुत कुछ कहा है। उससे ये पता चलता है कि किसका शऊर कितना तरबियत याफ्ता था, किसकी मालूमात क्या थी। कबीर ने कहा कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, क्या चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरो बहरो फैदाई। ये बुनियादी गलत है इसकी। इसलिए कि मस्जिद में जो मुअज्जिन अजान देता है वो खुदा को हर हाल में सुनता है, ये नमाजियों को पुकारता है कि भाई तुम चले आओ, नमाज का वक्त हो गया। ये पूरा कंसेप्ट वहां पे चेंज हो जाता है। फिर इबादतगाह के तौर पर टैगोर जी की एक पूरी नज़्म है, उनकी खाकी इबादतगाह, उसका उस नज़्म का उन्वान है। उसमें टैगोर साहब ने कहा कि भाई तुम मंदिर में या मस्जिद में या इबादतगाह के कोने में बैठे हुए तस्बीह लेके क्या पढ़ रहे हो, किस भगवान और किस खुदा की तलाश कर रहे हो? खुदा तो वहां है ही नहीं। खुदा वहां है जहां किसान हल चला रहा है, जब मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, जहां मेहनत कश अपना पसीना बहा रहा है। अगर खुदा को जानना जाए तो वहां से निकलो, बेअमली की जिंदगी को तर्क करो और अमल की राह इख्तियार करो, तुम्हें खुदा मिलेगा। टैगोर ने। और फिर हमारे इस जमाने के, देखिए ये तसव्वुफ और भक्ति एक फैशन नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं है कि जैसे चाहे हमने कर दिया। ग्लैमर के लिए अगर कुछ लोग इसका नाम लेते हैं और उनको इल्म नहीं है तो अपनी रुसवाई का सामान करते हैं। उनको मालूम नहीं है उनके डेप्थ कितना है उसमें। हमारे नदा फाजली अभी थे, बहुत मुशायरों के कामयाब शायर थे, वो पढ़ा करते थे और जहाँ जाते थे वहाँ हंगामा हो जाता है कि जितने दहशतगर्द थे वो सब मस्जिद में रह गए और जितने लोग थे नवाजी वो सब बाहर चले गए। हमेशा चल रहा है। ये नाबाकियत की दलील है। मैं इसी शहर बम्बई के बड़े शायर स्कॉलर जिनसे बरसाह बरस हम उनसे बात करते रहे, डेली 1.5 घंटा बात होती थी। बहुत बड़े स्कॉलर थे, फारसी के भी और उर्दू के भी और संस्कृत के भी। कालिदास गुप्ता रजा, उन्होंने शेर कहा कि जीने का निशान दे रहा हूँ,
जीने का निशान दे रहा हूं, रह रह के अजान दे रहा हूं। ये स्कॉलर है। अजान हमारी तहजीब का हिस्सा है। जिन गांवों में अजान देने वाली लोग नहीं होते थे, वहां के लोग बुला के लाते थे कि भाई हमारे यहाँ अजान दोगे तो हमारे यहाँ से बलाएं टलेंगी। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। अपनी नावाकफियत की वजह से या कहीं से कुछ इनाम हासिल करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती थी। तो मस्जिद को मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया है, लेकिन उस तरीकों जो हमको कालिदास गुप्ता रजा के यहाँ मिलता है, या जो हमको टैगोर के यहाँ एक दूसरी शक्ल में मिलता है, या तुलसीदास जी के जो मिलता है, वो सबके यहाँ हमको नहीं मिलता। इसी रवादारी को दूसरे लोगों ने कुछ किसी तरह से पेश किया। वो मुसलमान घर में पैदा हुए, अरबी के आलिम है, फारसी के आलिम है, हाफिज कुरान है, फ़िक़्ह को समझते हैं, जो भी समझा जा सकता उससे बेहतर आलिम है। लेकिन जब वो शेर कहते हैं या तहजीब अपनाते हैं तो पता करना मुश्किल हो जाता है भाई ये शेर किसी सूरदास का कहा हुआ है कि ये फला का कहा है। जैसे शाह काजिम कलंदर फरमाते हैं कि कहाँ गए ब्रजलाल कन्हैया। देखिए, अगर आपको मैं नाम ना बताऊं तो कोई नहीं कह सकता कि ये शाह काजिम कलंदर का नहीं है, ये सूरदास का नहीं है। नाम बता रहा हूं इसलिए आप जान रहे हैं कि कहाँ गए ब्रजलाल कन्हैया, मनमोहन बंसी के बजैया, कहाँ छुपी जाए मोहनी मूरत, सगरे नगर के मन के छलैया, और छीन छीन दूध मटकी फोड़ फोड़, बरज उजाड़गा बरज वसैया। ये शाह काजिम फरमा है, श्री कृष्ण की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। और उन्हीं के बेटे हैं हज़रत शाह तुराब अली कलंदर। फरमाते हैं कि आयो बसंत भई मतवारी, उमंग चली सब बारी कुंवारी, कोई अबीर लिए भर छोड़ी, कोई बनाए रही पिचकारी, कोई बजावत दफ कोई गावत, कोई डगरमा नाचत ठारी, देख तो कैसी बनबन आई, सुंदर नार दई की सवारी, अब ही सो बरसवा धूम मची है, होली खेलत है श्याम बिहारी, आप बचो रहे सबको रंगे। यानी आप तो बचे हुए हैं, आपके ऊपर कोई रंग नहीं डाले, आप बचो रहे सबको रंगे, को है तो बस चतुर खिलाड़ी। शाह तुराब अली कलंदर और ये संत राव और हसरत मोहानी में और शाह तुराब अली कलंदर में 100 साल का फर्क है। 100 साल के बाद हसरत ने उस किस्म की शायरी की कि मन तो से प्रीत लगाई कन्हाई, काहू और की सरत अब काहे का आई, गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढा, बरसाने लग घूम के आई। ये वो तमाम शहरों के नाम बता रहे हैं जहाँ कृष्ण जी रहा करते थे या जहाँ गए थे। गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढा, बरसाने लग घूम के आई, तन मन धन सब वार के हसरत, मथुरा नगर चल हो धूनी रमाई। यहाँ से अब मोटे रंग न डार मुरारी, बिनती करत हूँ बिहारी, पनिया भरन का जाए न तई है, श्याम भरे पिचकारी, थर थर कांपत लाजन हसरत, देखत है नर नारी। ये हमारे सूफिया कराम ने और उन शोराय कराम ने जिनपे तसव्वुफ के असरात थे, श्री कृष्ण का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया है। और उसमें बहुत से उलमा भी शरीक हैं, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी है। खुद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सीनियर फेलो की हैसियत से जो किताब लिखी है वो तकरीबन 300 सफ़े की है। और उसमें यह बताने की कोशिश की है कि एक खुदा को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर एक मुसलमान मानता है, श्री कृष्ण को उनकी जगह किस तरह से वो देखता है। तो उसमें ये हमने साबित करने की कोशिश की है कि कुछ शोरा ने तो उन चीज़ों को वर्सिफाई कर दिया, जो देखते थे जो सुनते थे उसको वर्सिफाई कर दिया, उसी को पेश कर दिया। कुछ लोगों ने सिंबल के तौर पर देखा है, कुछ लोगों ने उनको आरिफ हक और बुजुर्ग के तौर पर, चूंकि नबी रहमत से पहले वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इसलिए इस इम्कान का इजहार किया है कि मुमकिन है कि वो भी हादी और अल्लाह की तरफ से भेजे हुए कोई हादी रहे हों। बड़े खूबसूरत तरीके हैं। और श्री कृष्ण के हवाले नाच जैसी पाकीज़ा सिंस भी मौजूद है। और जिन लोगों ने इस सिंस को देखा है या बढ़ता है, वो कोई मामूली दर्जे के लोग नहीं थे, वो सब आलिम दीन थे, वो हाफिज कुरान थे, फ़िक़्ह को जानने वाले थे, हदीस कितनी याद थी उनको, कुरान का हिफ्ज़ था उनको। जैसे मोहसिन काकोरी भी वही शाह कादिम कलंदर के खानदान के थे। वो समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, कितने उलमा आए, वो पूरा पूरा कसीदा उसका जवाब कोई नहीं लिख सका है। तो ये बड़ा एक मसला है और उसको बयान नहीं किया गया है। भक्ति काल के जितने शोरा में सूरदास मिलते हैं, कबीर दास मिलते हैं, तुलसीदास मिलते हैं, दादू मिलते हैं और बहुत से लोग मिलते हैं, इसमें शाह काजिम कलंदर का नाम क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है।
या इल्म से हमारा सवाल, उनको क्यों उनसे बाहर रखा गया? उनको भी रखना चाहिए, उनकी जुबान वही है, उनकी अलामतें वही हैं, उनका अंदाज़ बयान वही है। और फिर उसमें हसरत ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, कुछ अशार उनके हैं उसमें अपने महबूब या अपने ममदूह या अपने शेख की तरफ इशारा है कि बगदादी दयालु खेवैया हमहू गरीब हैं पार जवैया, बिरहा की मारी निपट दुखियारी, ताकन कब तलक दूर से नैया, पार उतार पिया से मिलाओ रजाक पिया, बांसे नगर के बसैया, बांसे नगर के फरंगी महल के एक ही नाम के दो ही कन्हैया। तो दो बड़े अहम बुजुर्ग शाह अब्दुल रज़ाक बासरी और शाह अब्दुल रज़ाक फरंगी महली, इन दोनों की तरफ इशारा इनका है। अंदाज वही है जो भक्तों का भक्तों की शायरी का है। तो एक तो उसी रंग में शायरी की दोनों ने, जो संत थे उन्होंने भी और जो सूफी थे उन्होंने भी एक ही रंग में दोनों ने शायरी की। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे काफिला तमद्दुन और ज़ुबान व अदब का काफिला आगे बढ़ा, हमारे संत शोरा ने उस अकीदे को बयान किया जो खालिस इस्लामी अकीदा है, उसमें कोई आमेजिश नहीं, मुसलमानों का अकीदा। मसलन तुलसीदास जिसने कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बुदिन आना, यानी पाँव नहीं है मगर वो चलता है, कान नहीं है मगर वो सुनता है, हाथ नहीं है मगर वो करता है। यह अकीदा कहाँ से है? या सूरदास हम फानी जिंदगी हम फना हो जाने वाले हैं, दुनिया फना होने वाली है, 4 दिन अपनी नौबत चली बजाए। या नामदेव अभंग महाराष्ट्र के शायर हैं, संत काव्य का बहुत बड़ा हिस्सा है उनका। कहा करूँ जाति कहा करूँ पाती, राम का नाम जपूं दिन राती, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हुजूर दरपेश तू मनी। ये सब कुरान से अल्फाज लाए हैं, ये महाराष्ट्र के संत काव्य का हिस्सा है। पूरे इस्लामी अकीदे को अपने लफ्जों में बयान किया। और कुछ मुस्लिम शायरों ने भी, जिसमें सूफिया भी हैं, ऐसी बातें कही कि जिनकी हम कोई तावील नहीं कर सकते। अपने से जो बात कही वो इस्लामी अकीदे के सरियन खिलाफ है, उसकी मुताबिकत की कोई दलील हम दे ही नहीं सकते। मतलब मीर ने तो साफ कह दिया कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछो हो तुम, उनने तो कशका पीछा नहर में बैठा कब का तकने इस्लाम किया, तो साफ साफ ऐलान कर दिया। सौदा ने कहा कि छोड़ा मैं कुफ्र दी है फकत यार से गरज, तस्बीह से न काम न जुन्नार से गरज। यह शेख काबा होके पहुंचा हम कनिष्ठे दिल में हो, दर्द मंजिल एक चीज टुकरा है इनका फेरता। कैसा मोमिन, ज़ौक़ ने कहा बादशाह जफर के उस्ताद, कैसा मोमिन कैसा काफिर, कौन है सूफी कैसा रंग, बशर है सारे बंदे हक के, सारे झगड़े शर के हैं। असल में ये तहजीब है और शायरी को समझना हर शख्स के बस की बात नहीं है। 10-20 शायराना महफिलों में आइए, 10-20 किताबों को पढ़िए, उस किताब को पढ़ने से ज्यादा उस तहजीब को मजलिसों में पढ़िए, तब शायरी की जुबान समझने का सलीका आता है। उसके बाद आदमी को यह हक पहुंचता है कि उसके ऊपर फैसला सुनाए। ये उसके बाद शायरी के बारे में हम कोई फतवा फौरी तौर पर नहीं सकते। ये सारा मामला ये था कि अपनी कैफियत को नज्म करते थे, वर्सिफाई करते थे। जो कैफियत तारी होती थी उसको फौरन बयान करते थे, वो उनका अकीदा नहीं होता था वो। और अपनी कैफियत को बयान करने के लिए अभी जैसे तो इन्होंने बुल्ले शाह जी का कलाम पाया, बहुत बड़े सूफी हमारे, मजलूब थे वो, उनको अपना होश व हवास नहीं है। हर मजहब का आदमी उनके बड़ेपन का कायल है। शायद ही हिंदुस्तान का या साउथ एशिया में या बाहर कोई भी आदमी जो बुल्ले शाह को न मानता, जो नहीं मानता उसके इंसान होने में शुबा किया जाता है। वो इतने बड़े शायर। अब इसको अभी आपने जो पढ़ा, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, अब इसको जरा समझने की देखते रहे। सूफी वो थे, मजलूब थे, लेकिन उनको होशो हवास नहीं था। लेकिन वो उनका अकीदा था कि अल्लाह एक है, उनका अकीदा था कि कुरान बरहक है, उनका हक था, उनका यकीन था कि कुरान में जो कुछ कहा गया है वो हमेशा के लिए है, और उसी को वो बयान करते थे अपने तौर पर। तो वो जो कुछ उनका अकीदा था वो मंजर होकर उनकी आंखों के सामने आ जाता था, और फिर उसको जो देखते थे उसको बयान करते रहते। अलग तो रब्बुकुम, हमारा अकीदा ये है कि भाई फजल में तमाम अरवाह को जमा किया गया। अल्लाह ने पूछा कि भाई अब तुम लोग दुनिया में जाने वाले हो, मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ? तो सबने कहा कालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं। यहाँ पे आए तो अपने अपने काम में लग गए, उसमें कुछ भूल गए, कोई उन्होंने हक अदा नहीं किया, किन्होंने हक अदा करने की कोशिश, तो मुख्तलिफ लोगों अब अपने इस अकीदे और अपने इस मुशाहिदे को जो आफाक
इत्तफाकी अकीदा है, पूरी दुनिया के लोगों का अकीदा है। आपने उस मुशाहिदे को इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा बनाकर पेश किया है, तब इस किस्म की शायरी पैदा हुई है। कहते हैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी गूंज पड़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रंगीली वही खिलावे, रंग रंगीली वही खिलावे जो सकी होवे फना फिल्ला, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। अलफ्त बरबकुम पीतम बोले, सब सखिया ने घूंघट खोले, कालू बलाही यूं कर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। ये उनके अपने मुकाशफात हैं, ये अपनी उनकी कैफियत है, जिसको उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक अपनाया है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा बनाकर पोइटिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, ताकि वो हमारे दिलों में उतर जाए, हमारे दिमाग में बस जाए और हम उस कैफियत में सरशार होकर हो जाए। उसकी बुनियाद पर कोई फतवा नहीं अदा किया जा सकता। नहनु अक़रब की बस्ती में जाई, यानी ये नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान की आयत है कि मैं तुमसे तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है। उसकी तरफ इशारा है कि नहनु अक़रब की बंसी बजाई, मन अरफा नफ्सहू की कूट सुनाई, फसम्मा वजुल्लाह की धूम मचाई, विश दरबार रसूल अल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। हाथ जोड़कर पाँव पढ़ूंगी, आजिज़ होकर विनती करूंगी, झगड़ा कर भर चोली लूंगी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। फसकुरुनी की होरी बनाऊं, वशकुरुनी कह पिया नचाऊं, ऐसे पिया के मैं बलबल जाऊं, कैसा पिया सुभान अल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। सब सिबगत अल्लाह की भर पिचकारी, अल्लाह समत पिया मुंह पर मारी, नूर नबीदा हक से जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। ये पूरी कैफियत का इज़हार है, एक तहजीब का इज़हार है, एक ऐसी कैफियत का इज़हार है जो आदमी को दुनिया में रहते हुए दुनियावी खराबियों से दूर होने की तहरीक अता करती है और कुव्वत अता करती है। इसका मुजाहरा किया है। तो हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने जो शायरी की है, उस शायरी ने अकीदे का जो मामला है वो है, उलमाए कराम तय करेंगे उसको धर्म ग्रंथ को समझने और बयान करने वाले समझ करें, लेकिन एक तहजीब अता करती है, दुनिया में रहने का हमको एक तरीका सिलाती है, पुरसुकून रहने का एक गुरुमंत अता करती है। भक्ति के सिलसिले में एक बहुत कई स्कॉलर्स ने इसको नकल किया है कि हमारे व्यास जी ने, बड़े महान ऋषि हैं, उन्होंने नारद जी से कहा कि भाई मैंने बहुत से ग्रंथ लिखे, ज्ञान ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे दिल में बड़ी बेकैफी और बेसुकूनी है, मुझे सुकून नहीं है, कोई ऐसी तरकीब बताइए कि सुकून मिल जाए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि साहब आपने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ज्ञान ग्रंथ लिखे हैं, एक प्रेम ग्रंथ लिखिए, आपको सुकून मिल जाएगा। और उसके बाद भागवत पुराण की रचना हुई। ये इंडियन ट्रेडिशन का थी, पंडित जी हमारे सामने बैठे हुए शुद्ध पूरा हमारा बहुत ट्रेडिशन है ये। तो बड़े खूबसूरत है, तो एक तहजीब हमें अता की है, एक ज़ब्त नफ्स का सलीका हमें अता किया है, और इसके असरात जो मजहब के मानने वाले थे उन पर भी मुरतब हुए हैं, जो मजहब के नहीं मानने वाले थे उन पर भी मुरतब हुए हैं। मजहब में भी अलग अलग लोग हैं सब पर, और जो मजहब को नहीं मानते थे या कम से कम शो नहीं करते थे, उन पर भी इसके असरात मुरतब हुए, उससे वो खाली नहीं है। मसलन फैज़ अहमद फैज़ की बड़ी खूबसूरत नज़्म है कि हमारा अकीदा ये है कि एक दिन आएगा, क़यामत बर्पा होगी, आसमान ज़मीन सितारे सूरज चाँद सब खत्म हो जाएगा, सबके हाथ से पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और उसके मुताबिक फैसला होगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा। ये एक मुस्लिम अकीदा है। और वहीं से अल्फाज लाए और ला के बिल्कुल उस मजहबी रवायत को एक इनकलाबी रवायत से मिलाने की कोशिश की फैज़ अहमद फैज़ ने। बड़ी खूबसूरत नज़्म की, उस नज़्म की कैफियत को समझिएगा तो आपको लगेगा कि कितना डायमेंशन कितना बड़ा है इसका, तसव्वुफ और भक्ति की शायरी का, तसव्वुफ और भक्ति के कंसेप्ट का। और इन्होंने लफ्ज़ों को एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग के प्रोसेस से गुजार देने के बाद उनकी काया पलट कर दी। एक लफ्ज़ कहीं किसी और मानी में था, यहाँ आके कुछ और मानी अख्तियार की। मतलब हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सब ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब कुछ उठवाए जाएंगे
ہم اہل صفا مرصود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ وقت آئے گا، اب اس کا دیکھیے سیکولر انٹرپریٹیشن، ایک وقت آئے گا لوگوں کا ضمیر جاگے گا، لوگوں کا شعور بیدار ہوگا، اور شعور بیدار ہونے کے بعد عوام بغاوت جب کریں گے تو یہ جو تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دولت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، غلط باتیں کر کے انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں، ان کا کہیں پتہ نہیں ہوگا، اور ہماری حکمرانی ہوگی، ہم ہی حکمراں بھی ہوں گے اور ہم ہی رعایا بھی ہوں گے، اور محبت پوری کیفیت کو اس نے بدل دیا، پوری کیفیت کو بدل دیا۔ اور یہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ فیض کے ہاں بھی ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، فیض کے ہاں بھی اس سے پہلے کے بھی شاعر تھے۔ ہمارا اقبال نے دو کیریکٹر کا مکالمہ کیا کرایا، ایک ابلیس ہے اور ایک جبریل ہے۔ جبریل اتنا مقدس ہے کہ وہ قرآن وہی لے کے آتا ہے اور پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، ابلیس اتنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے۔ تو دونوں میں جب کیریکٹر ہوتا ہے تو جبریل ابلیس کو یہ نہیں کہتے کہ ابے گدھے، ابے الو کے پٹے، ابے مردود، ابے نالائق، نہیں کہتا، کہتا ہے ہم دمے دہرینا کیسا ہے جہان، یہ تہذیب کہاں سے ہے، یہ اقبال نے دیا، ہم دمے دہرینا کیسا ہے جہان، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ اور اقبال کے بہت سے، اقبال نے صوفیاء کرام پر اور تصوف پر تنقیدیں بھی کی ہیں، لیکن تصوف کے سلسلے سے وہ وابستہ بھی تھے، قادری سلسلے میں بیعت بھی تھی، بڑے معمولی سے عام فہم شعر میں، ان میں بھی تصوف کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو انہوں نے نکالا ہے جو اقبال ہی نکال سکتے۔ مثلا اقبال کا شعر ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ ہر شخص کو یاد ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شمع کی روشنی ہوتی ہی کتنی دیر کے لیے، 2-3 گھنٹے کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے؟ شمع کی روشنی جتنی دیر پھیلتی اور ریڈیس ہوتا ہی کتنا بڑا، 2-2.5 فٹ کا، جبکہ چاند پوری رات، ستارے پورے رات چمکتے ہیں، چاند پوری رات چمکتا ہے، سورج پورے دن چمکتا ہے، تو کچھ اور بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید ضرورت شعری کی بنیاد پر کوئی اور لفظ وہاں فٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے شمع کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جیسے چھوٹے شاعر بھی 10 لفظ دے سکتے ہیں آپ کو کہ یہاں استعمال ہوا کر سکتے ہیں۔ مثلا چاند پوری رات چمکتا ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، ٹھنڈک بھی عطا کرتا ہے، تو بڑی آسانی سے اقبال کہہ سکتے تھے کہ زندگی چاند کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ماہ کی صورت ہو خدایا میری۔ ماہ کے معنی بھی چاند کے ہوتے نہیں، وہ اسی وزن پر ہو، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ زندگی مہر کی صورت ہو خدایا میری، سورج کے معنی میں پورا دن سورج رہتا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی کے لیے ہمارے یہاں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، آب ہے، چاہ ہے، نہر ہے، بحر ہے، سمندر کے معنی میں، نہر کینل کے معنی، آب کنویں کے معنی میں۔ تو کہہ سکتے کہ زندگی آب کی صورت ہو خدایا میری، زندگی بحر کی صورت ہو خدایا میری، زندگی نہر کی صورت ہو خدایا میری، زندگی چاہ کی صورت ہو خدایا میری۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سانس ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اقبال کہہ سکتے تھے کہ زندگی باد کی صورت ہو خدایا میری، ہے ہمارے یہاں ایک لفظ موجود ہے۔ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی پہ رہتے ہیں، مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ اقبال کہہ سکتے ہیں کہ زندگی خاک کی صورت ہو خدایا میری۔ لیکن اتنے الفاظ کے ہوتے ہوئے وہ سب کو چھوڑ کے وہ یہ نہیں کہتے کہ زندگی ماں کی صورت ہو خدایا میری، زندگی چاہ کی صورت ہو خدایا میری، زندگی بحر کی صورت ہو خدایا میری، زندگی مہر کی صورت ہو خدایا میری، وہ کہتے ہیں زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شمع علامت ہے علم کی، شمع علامت ہے روشنی کی، شمع علامت ہے تہذیب کی، شمع علامت ہے اشاعت کی، شمع علامت ہے اس اشاعت کی اور اس تہذیب کی جو فنا ہو کر بقا ہونے کا راز دیتی ہے۔ اس لیے اقبال لگا ہمارے یہاں اقبال تھا، اقبال نے پورے نسل کی تربیت کی ہے۔
पूरी फिक्र की आबियारी की है, और उसके जरिए जो तहजीब अता की है वो उस तहजीब को तक़वियत अता करती है जिससे हमें और आपको जिंदगी मिलती है। लेकिन हर अच्छी चीज की नकल भी की जाती है, हर अच्छी चीज में गंदे लोग भी घुस आते हैं, कोई फला साहब कोई खटा साहब। इसलिए जिसे देखिएगा लाल पीला कपड़ा पहन के फटा बांध के और वो करके देखिए सब सूफी बना हुआ है, आपका पैसा छीन लेगा, छीन लेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज दुनिया भर की है। तो इनको दुरुस्त करने का काम भी सूफिया कराम ने किया है। यदि सूफिया गलतकार सूफियों को अपने से अलग करने का काम शायरों ने भी किया है, सूफियों ने भी किया है और संतों ने भी किया है। एक शहबाज अमरोही साहब थे, उन्होंने शटायर में तंज में अच्छी सी नज़्म कही है कि शोहरा मेरी विलायत का है कूबकू, धाक मेरी करामत की है 400, मुझको कहते हैं सब सूफिये नेखू, मेरे लब पर है हरदम यही गुफ्तगू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शटायर ये जो मेरे मुरीदाने मक्कार हैं, ये जो मेरे मुरीदाने मक्कार हैं, मुझसे बढ़कर कहीं मर्दुम आज़ार हैं, इतने पस्त उनके अखलाक व अतवार हैं, जिन पे कहता है शैतान भी आँख थू। गलतकार सूफियों को अलग करने का काम भी सूफिया कराम ने किया। सूफिया कराम ने एक तहजीब दी, एक अंदाज दिया, जीने का सलीका अता किया, दर्दमंदी अता की, वो तासीर अता की जो दिल की धड़कनों को दिल की धड़कनों से हमाहन करती है। ये उनका कारनामा है। और ये सब तब होता है जब इखलास के साथ आदमी काम करता है। इमाम हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम गजाली। इमाम गजाली पहले सिर्फ स्कॉलर थे, बाद में 12 साल वो दमिश्क की मस्जिद के मीनार में बैठ के इबादत की बाहर ही नहीं निकले। उसके बाद सूफी बनकर वहां से निकले। उनकी किताब में एक जगह उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया मुर्दार है। मुर्दार की कैफियत ये होती है कि जो मुर्दा है, जो मर चुका है, कुछ देर के बाद उसका बदन सड़ जाएगा, उसे कीड़े पड़ेंगे, फिर कीड़े से बीमारी पैदा होगी, बीमारी दूसरे को लगेगी, और दूसरा भी जो सेहतमंद था, जो जिंदा था, वो भी मर जाएगा। मौत का पैगाम है। तो कहते हैं कि पूरी दुनिया मुर्दार है, जिंदा सिर्फ है जो पढ़े लिखे, जिंदा सिर्फ है जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे, बाकी सब मुर्दा है। फिर कहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे हैं ये भी मुर्दा है, वो भी मुर्दा है। जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो पढ़ा लिखा भी है, जिसको ज्ञान भी है, एजुकेशन भी है, इल्म भी है, और वो अच्छे कर्म भी करता है। जब दोनों करता है तब करता है। और फिर कहते हैं कि ये जो सारे ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा आलिम लोग हैं, ज्यादा अच्छे अमल करने वाले लोग हैं, वो भी मुर्दा है, दोनों मुर्दा है। फिर जिंदा कौन है? कहते हैं कि जिंदा वो है जो आलिम भी है, अच्छे अमल भी करता है, और अच्छे अमल खुलूस के साथ करता है, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए अगर करता है तो ये जो है सूफिया कराम ने एक अकीदे को तो दिया है जो उनके तक महदूद है, लेकिन जो तहजीब दी है, जो अंदाज दिया है, जो किरदार किया है, जो दर्दमंदी की जो रवायत कायम की है, वो हमारे लिए अमानत है। इस अमानत को संभालना हमारा भी फर्ज है, हम और आपका भी फर्ज है। और जब हम इस अमानत को संभालेंगे तो हमारी जुबान से, आपकी जुबान से निकलेगा कि सादे दिल छेड़ के भी, तोड़ के भी देख लिया, इसमें नगमा ही नहीं कोई मोहब्बत के सिवा।